read the poem How to Tell Wild Animal. This is class 10th poem and this is a humorous poem. And in this poem, the poetess has told us about the animal identity in a very humorous way. In the poem, the poet describes the characteristic of various wild animals in a humorous manner. She has used language in a way that makes people laugh. She introduced the reader to a various types of wild animals such as ancient lion, Bengal tigers, bears, and so on, explaining each of the animal in a very humorous manner. So let's start this poem. Let's start the reading of this poem. First stanza is given. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it's the Asian lion. Now let's see the hard word. There is tawny, it means yellowish brown color. And in this stanza, the poet is telling us the reader how they can recognize various animals in the eastern jungle. So in the first stanza, she says that if the reader encounter an animal whose skin is yellowish brown in color and roars at him so loudly that he can die from fear, he has encountered an Asian lion. She has humorously described the Asian lion whose roar can kill a person. तो ये पहला जो स्टेंजा है उसमें हमारी पोएटेस बोल रही है कि अगर हम कहीं कभी ईस्ट के जंगल में जाते हैं और हमें एक येलोइश ब्राउन कलर की स्किन वाला एक जो एनिमल है वो दिखता है और वो इतना तेज़ से दहाड़ता है कि हम उसी समय मर जाएं, इतना ज़्यादा हम डर के मारे मर जाएं, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, एशियन लायन होगा। इस तरह से ह्यूमरस वे से जो हमारा पोएटेस है उसने एशियन लायन की जो है identification बताई हुई है. Now let's see the literary device in this stanza. The literary rhyming scheme is there. A B A B C C. You'll see here chance then east. So chance is A, east is B, and then advance is A again, and beast is again B, and then C and C. Now next poetic device is used here, enjambment, because you see there is no punctuation mark is used in the line. If there is tawny beast, till tawny beast तक आपका कोई भी punctuation mark नहीं यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे enjambment यूज़ हुआ है. एंड थर्ड जो poetic device यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, if there should to you advance, तो यहाँ पे जो है फॉर्मेट हमारे सेंटेंस का जो है वो चेंज किया है, इन्वर्जन यूज़ किया हुआ है. यहाँ पर एसोनेंस यूज़ हुआ है. एसोनेंस आप जानते हो जब वॉवल साउंड का रिपीटिशन होता है वर्ड्स के मिडिल में, कई सारे वर्ड्स के मिडिल में, तो वहाँ पर आपका एसोनेंस है. आप देखोगे इस लाइन में यू शुड गो टू यू, तो यहाँ पे यू में ओ, शुड में ओ, गो में ओ, शुड में फिर अगेन ओ है, तो ओ का कई बार रिपीटिशन हुआ है. दिस इज़ द यूज़ ऑफ एसोनेंस. Now allusion is also used here because रेफरेंस टू अ फेमस थिंग इन्होंने दिया है, स्पेसीज ऑफ एनिमल. एंशियंट लायन की जो स्पेसीज है उसको लिया हुआ है, तो दिस इज यूज ऑफ एल्यूजन हियर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. इट्स or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So here let's see the hard word meaning. noble means high born, means एक person जो कि बहुत ही रॉयल हो. एंड डिसर्न होता है रिकोगनाइज, पहचानना किसी चीज़ को. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. Our poetess describes an animal that lives in a jungle and is a part of royal clan. यहाँ पे उन्होंने एक एनिमल के बारे में बताया है जो कि रॉयल क्लेन का, एक शाही वंश का जो है पार्ट होता है. इट्स स्किन इज येलोइश इन कलर विथ ब्लैक स्ट्रिप. उसकी स्किन जो है येलो कलर की है जिसमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती हैं. शी क्लेम्स दैट इफ़ यू नोटिस हिम किलिंग एंड ईटिंग, अगर तुम उसे किसी को मारते हुए खाते हुए देखोगे, यू हैव अनडाउटली सीन अ बंगाल टाइगर, तो ज़रूर ही तुमने किसको देखा होगा, बंगाल टाइगर को देखा होगा. दिस टाइम शी यूज डार्क ह्यूमर टू डिस्क्राइब हाउ अ टाइगर लुक्स. यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर यूज़ किया है इसको डिस्क्राइब करने के लिए कैसे जो टाइगर है वो दिखता है. बिकॉज डिटरमाइनिंग विच वाइल्ड एनिमल एट अ पर्सन इज़ पॉइंटलेस, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो एक पॉइंट दिया है कि अगर वो किसी को खाते हुए देख रहा है, वाइल्ड एनिमल को खाते हुए देखोगे,
तो ये सारी चीज़ पॉइंटलेस है। वंस द पर्सन हैज़ बीन ईटन, अगर इंसान वो खा ही लेगा तो वो इंसान कैसे उस टाइगर को देख पाएगा जब पहले ही वो मर जाएगा उसने। Now let's see the literary device here. Rhyming scheme again. Rhyming scheme is AB. AB, C is followed here, like as around, ground, you, learn and discern. Now the repetition of consonant sound is used. R, it's repeated too many times. This is the use of alliteration. Roaming round. R repeated 2 times. This is the use of alliteration. Now the third poetic device is used here, inversion. The change of format of a sentence. The Bengal tiger to discern. This is the use of inversion. Now allusion. There is a reference, famous thing, place, species of animal he has used just like a Bengal tiger. So it's a use of allusion. Now assonance, again it has used. O sound is used too many times, like the or if sometime when roaming around. So और में some में ओ है आपका, roaming में भी ओ है, round में भी ओ है, तो कई बार repetition हुआ है यहाँ पे ओ sound का. So here is the use of assonance. Now let's come to the next stanza, that is, if strolling forth a beast you view, whose height with spot its pepper, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. Now let's see the hard word meaning. स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉकिंग कैजुअली, मतलब आसानी से, जो हम हैबिचुअल वॉक है वो करना, आसानी आराम से चलना. फोर्थ मीन्स आगे की ओर, फॉरवर्ड. हाइट मीन्स स्किन ऑफ द कलर, स्किन ऑफ द एनिमल की जो स्किन होती है उसको लिया गया है यहाँ पे. पेपर्ड मतलब होता है जहाँ पे हम ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, दैट इज़ पेपर्ड. लिप मतलब होता है आपका जंप के लिए उन्होंने यूज़ किया हुआ है. नाउ लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ़ यू गो फॉर अ वॉक इन द जंगल, हमारे पोएटिस के अकॉर्डिंग अगर हम जंगल में वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, यू विल कम अक्रॉस एन एनिमल विथ स्पॉट ऑन हिज हेड. तो अगर तुम्हें एक एनिमल दिखता है जिसकी स्किन पे स्पॉट्स बने हुए हैं ब्लैक कलर के, दिस एनिमल इज़ सो फास्ट, और ये एनिमल बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत तेज़ रनिंग करता है, दैट इट विल बी लेफ्ट ऑन यू एट द सेम टाइम, कि जैसे ही आपने देखा और उसने आपके ऊपर जंप लगा दी. तो अगर वो इतना ज़्यादा फास्ट है, ऐसा है, स्पॉटेड एनिमल है, स्किन पे स्पॉट्स बने हुए हैं, तो ये दिस लीप इंडिकेट्स दैट इट इज़ नन अदर देन द लेपर्ड. तो ये इंडिकेशन आपको देता है कि ये कोई नहीं बस कि लेपर्ड है. फर्दर मोर सी एड्स द क्राइंग आउट इन द पेन, और फिर वो कहती है कि तुम दर्द में चिल्ला रहे होगे, विल बी द फ्यूटाइल, वो उसका रिजल्ट होगा, बिकॉज इट विल कंटिन्यू टू जंप ऑन यू, क्योंकि वो तुम पर कंटिन्यू ही जंप करेगा. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड अ लेपर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और इस थर्ड स्टैंजा में हमारी पोएटिस ने लेपर्ड की कैरेक्टरिस्टिक बताई हुई है. लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस. राइमिंग स्कीम ए बी सी सी इज यूज्ड अगेन, just like view, you, pepper, leopard, pain, again. Now alliteration, use of consonant sound H is used in the beginning of the two words, just like he has. The poetic license is used because here they have used lep. ये यहाँ पे आपका वर्ड जो है वो लेफ्ट के लिए यूज़ हुआ है, और उसका फॉर्मेशन थोड़ी चेंज किया गया है. तो जब भी हम किसी वर्ड को राइमिंग देने के लिए, रिदम देने के लिए उसकी फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, तो वहाँ पे आपका पोएटिक लाइसेंस होता है. रेपिटिशन, लेप वर्ड का 2 टाइम्स यूज़ हुआ है एक लाइन में, तो यहाँ पे आपका रेपिटिशन है. एसोनेंस यूज़ हुआ है क्योंकि स्ट्रॉलिंग फॉर्थ यूज़ हुज स्पॉट डू नो गुड टू रोर, यहाँ पे ओ साउंड का मैनी टाइम्स यूज़ हुआ है, तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एसोनेंस. एंड कंसोनेंस, क्योंकि आपका यहाँ पर यूज़ हुआ है एल का, कई बार हुआ है हील एंड ओनली में भी एल आपका है, लैप में तो कई बार आपका एल साउंड का यूज़ हुआ है. सो देयर इज़ यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑल्सो. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज़ द फोर्थ स्टैंजा. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मेट अ क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just once more caress. Now let's see the word meaning. Yard,
इट्स मीन्स द बैक यार्ड, या कोई लॉन एरिया होता है हाउस का, उसको कहते हैं यार्ड, मतलब आंगन को ही बोला जाता है। कैरस मतलब होता है एक जेंटल टच, एक बहुत ही सॉफ्ट सा टच, दैट इज कॉल्ड कैरस। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर तुम अपने यार्ड एरिया में वॉक कर रहे हो एंड कम अक्रॉस अ क्रिएचर, और सडनली तुम एक क्रिएचर को देखते हो, एक एनिमल को देखते हो दैट हग्स यू टाइटली, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा तेज से हग करता है, इट्स अ बियर, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, बियर होगा। शी गोज ऑन टू से दैट इफ़ यू आर स्टिल अनश्योर अबाउट इट, अगर तुम अभी भी इसके बारे में श्योर नहीं हो एनिमल के बारे में, द सिंपलेस्ट वे इज़ फॉर हिम टू कीप हगिंग। तो आपका सिंपल वे है इसको जो है फाइंड आउट करने का कि क्या है। कीप हगिंग एंड जेंटली टचिंग यू, तो वो जो एनिमल है वो तुमको बहुत सॉफ्ट तरीके से टच करेगा और तुम्हें हग करेगा। दिस एक्ट ऑफ हिज विल रिश्योर यू इट्स आइडेंटिटी, और इस तरह का जो एक्ट उसका होगा वो ज़रूरी है उसकी आइडेंटिटी को शो करेगा आपको, और आप पता चल होगा कि ये क्या है, एक बियर है। नाउ लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइस। टाइम स्कीम यहाँ पे हुई है आपकी ए बी एंड सी यार्ड हार्ड देयर बियर guess and caress. Now enjambment is used here because if you were walking creature there, इस लाइन में, यहाँ के लाइन में आपका कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज़ हुआ है, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ इंजैबमेंट, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में 2 या 3 लाइन में हमने क्या किया, इसको ऑक्यूपाई किया है कि उस एक ही चीज़ के बारे में 2 या 3 लाइन को हमने बोला है, सो दैट इज़ अ इंजैबमेंट। एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है क्योंकि डब्ल्यू वर्ड का जो साउंड है वो हुआ है व्हेन वॉकिंग में 2 टाइम्स, एंड आज का साउंड भी हुआ है हु हग्स, यूज़ ऑफ बी साउंड भी हुआ है, बी बियर भी हुआ है। न एसोनेंस इज ऑल्सो देयर, क्योंकि आपका वॉवल ई का यूज़ कई बार हुआ है, मीट अ क्रिएचर देयर, तो ई का साउंड काफ़ी टाइम हुआ है आपका वर्ड के मिडिल में, सो दैट इज़ द एसोनेंस। नाउ लेट्स द फिफ्थ स्टैंजा, लेट्स कम टू द फिफ्थ स्टैंजा। दो टू distinguish beast of prey, a novice might not plus the crocodile you always may tell from the hyena, thus hyenas come with merry smiles, but if they beat they are crocodiles. Now distinguish means होता है डिफ्रेंशिएट करना, अंतर दिखाना, निकालना। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब होता है एनिमल दैट हंट अदर एनिमल, वो एनिमल जो कि किसी ऐसे एनिमल को खाता अपने खाने के लिए। नॉविस मतलब होता है समवन न्यू टू अ जॉब, एक नौसिखिया कह सकते हैं जो कि जॉब में नया हो। नॉन प्लस मतलब होता है बी कन्फ्यूज पर्सन। अकॉर्डिंग टू द पोएट रिकॉग्नाइजिंग एनिमल दैट हंट अदर एनिमल, अब यहाँ पे हमारा पोएट कहता है कि ऐसे एनिमल को फाइंड आउट करना जो कि दूसरे एनिमल को अपने फूड के लिए हंट करता है, विल बी लाइक अ पजल फॉर समवन, तो ये क्या होगा, ये पजल होगा उसके लिए, हु इज़ न्यू टू जॉब ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, जो कि नया होगा रिकॉग्नाइजिंग एनिमल की जॉब में पहला पर्सन होगा, वो इसके लिए पजल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सो इन दिस केस द पोएट ट्राइज टू असिस्ट द रीडर, तो इस केस में हमारा पोएट जो है वो हमारे रीडर को असिस्ट करता है कि उसे किस तरह से एनिमल को आइडेंटिफाई करना है बाय डिस्टिंगाइजिंग, क्योंकि वो वहाँ पे डिफरेंस बता रहा है कि 2 एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा। वो कहता है ही क्लेम्स दैट द हाइना विल बी ऑलवेज स्माइलिंग, तो वो बताते हैं कि हाइना हमेशा हंसता रहता है, जबकि क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा रोता रहता है। तो बोथ ऑफ दीज एनिमल आर एक्सट्रीमली डेंजरस, ये दोनों ही एनिमल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस। राइमिंग स्कीम ए बी सी इज देयर बिकॉज द प्रे में नॉन प्लस द smiles and crocodiles. Alliteration is used consonant sound of n, novice and non plus, nn used 2 times, and the and thus, that is also the th is used 2 times. This is a alliteration. Enjambment क्योंकि continuation है sentence का, next line में दो टू distinguish से might non plus the crocodiles and then hyena, thus तक यहाँ तक आपका continuation जो चला हुआ है sentence का, so this is a enjambment. Now let's come the last stanza. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. According to the poet, the next creature is a chameleon, which is a small creature. हमारे पोएट के अकॉर्डिंग में जो नेक्स्ट क्रिएचर है वो एक चैमेलियन है, एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ लिजार्ड एंड अ चैमेलियन, सिर्फ एक ही अंतर है लिजार्ड और चैमेलियन के बीच में, दैट चैमेलियन लैक्स ईयर, की चैमेलियन के क्या है, कान नहीं होते हैं ना विंग्स होते हैं। एंड फर्दर मोर शी क्लेम्स दैट द चैमेलियन कैन चेंज देयर कलर, और फिर वो बताती है कि चैमेलियन क्या है, वो अपना कलर चेंज करता रहता है।
जैसा होगा, जैसे ही सरफेस पे होगा वो वैसा ही कलर कर देता है। सो दे आर द सिटिंग ऑन, और वो जब वो किसी सरफेस पे बैठते रहते हैं, एज अ रिजल्ट इफ़ यू सी अ ट्री विद नथिंग एल्स ऑन इट, अगर तुम किसी पेड़ में देखते हो उसमें कुछ भी नहीं दिखता है तुम्हें, इट मस्ट बी अ चैमेलियन सिटिंग ऑन इट, तो ज़रूर ही उसमें चैमेलियन बैठा होगा। इट्स कलर हैज़ चेंज टू दैट ऑफ द ट्री, क्योंकि उसका कलर जो है वो ट्री के कलर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सो लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइस हियर। A B C C C C is the rhyming scheme, small all and thing wings and big free and C। alliteration H sound is used, he hasn't वाले में HH यूज़ हुआ है आपका, कॉन्सोनेंट्स यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिंगल विंग में जी का रिपीटिशन हुआ, सो दिस इज़ अ